ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کا ناظم آباد ٹاؤن میں کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر رین ایمرجنسی کا اعلان۔ میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اطہر سعید خان کا عید گراؤنڈ کا تفصیلی دورہ۔ ٹاؤن چیئرمین سید محمد مظفر کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ، صفائی اور شہری سہولیات کی فراہمی ٹاؤن انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے ناظم آباد ٹاؤن میں کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر رین ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ انتظامی عملے اور فیلڈ اسٹاف کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں تاکہ عوام کو بلا تعطل خدمات فراہم کی جا سکیں۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد ناظم آباد کی سڑکوں پر اپنی ٹیم کے ہمراہ متحرک، جبکہ یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمین، سینیٹیشن، ریسکیو اور اینٹی انکروچمنٹ ٹیمیں بھی ان کے ہمراہ میدان عمل میں موجود ہیں۔ میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اطہر سعید خان نے عید گراؤنڈ کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں صفائی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر انسپکٹر عارف الدین نے میونسپل کمشنر کو موقع پر موجود انتظامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور جاری اقدامات سے آگاہ کیا۔ میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اطہر سعید خان نے کہا، ناظم آباد ٹاؤن کی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کی جا چکی ہے۔ چیئرمین سید محمد مظفر نے واضح کیا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ، صفائی اور شہری سہولیات کی فراہمی ٹاؤن انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ناظم آباد ٹاؤن میں نظم و ضبط اور صفائی کی صورتحال کو ہر حال میں بہتر رکھا جائے۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد نے کہا، چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کی ہدایت پر عیدگاہ مین روڈ کے چوکنگ پوائنٹ کو کلیئر کر دیا گیا، ڈھکن بند کر دیے گئے اور وہاں وائپر اور جھاڑو لگا کر روڈ کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ زمین پر پڑتے ہی گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ نے صفائی ستھرائی اور نکاسیات کے کام شروع کر دیے۔ ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ نے کہا، ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بارش کا پہلا قطرہ زمین پر پڑا تو گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ عائشہ منزل فلائی اوور کے نیچے پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا گیا۔ چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں، ممکنہ بارشوں کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ جیسا کہ آج کی پیشن گوئی تھی بارش کی، اور جو ہے وہ بارش ہوئی، اور الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن نے اس کے لیے اپنے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں، مشینری ہے یا جو ہمارے سویپرز ہیں، الحمدللہ وہ فیلڈ میں موجود ہیں، اور بارش بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو پیشن گوئی تھی کم ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنی تیاریوں کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ جو بھی بارشوں کے حوالے سے جو بھی آگے فیوچر میں بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے سے گلبرگ ٹاؤن کی اپنی تیاری موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کراچی پر رحم کرے اور ہمارے لیے آسانی کرے، فیلڈ بیرے کے رہنے والوں کے لیے آسانی کرے۔ گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ نے اپنے سینیٹیشن کے عملے اور افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ نکاسی کا کام بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اور پی ایس 95 کے صدر سلیم افان، ٹاؤن کونسلر امتیاز چیمہ، راجہ بابر اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کورنگی کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹس کو بھی مثالی بنایا جائے گا تاکہ شہریوں کو خوشگوار ماحول میسر آ سکے۔ ضلعی صدر جانی میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا منشور عوامی خدمت ہے، ٹاؤن کے زیر اہتمام بہترین کام ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین اور افسران سمیت ضلعی صدر کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ عوامی خدمت کے لیے بروقت اقدامات، سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ ہر وقت متحرک اور حاضر۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم اور میونسپل کمشنر سہراب گوٹ ٹاؤن میر اورنگزیب مکسی کی واضح ہدایات پر کراچی میں ہونے والی بارش کے فوراً بعد سہراب گوٹ ٹاؤن کے مختلف علاقوں اور شاہراہوں سے ٹاؤن مشینری کے ذریعے پانی کی نکاسی کا عمل تیزی سے جاری رہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بارش کے پیش نظر سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے۔ متعلقہ افسران و عملہ فیلڈ پر موجود ہے اور نکاسی آب کے عمل کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ٹاؤن کی مرکزی سڑکوں، گلی محلوں اور نشیبی مقامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ پیمپس اور ہیوی مشینری کو متحرک کر کے پانی کھڑا ہونے کی صورت میں فوری کارروائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی ہدایت ہے کہ عوامی سہولت کو اولین ترجیح دی جائے۔ بارش کے دوران اور بعد میں صفائی ستھرائی، نالوں کی نگرانی اور ہنگامی نکاسی کے اقدامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर मीर औरंगजेब मक्सी की जेर निगरानी टाउन के तमाम महकमजात में अलर्ट जारी है और रिस्पांस टीमें हर वक्त तैयार हैं। सोराबकोट टाउन इंतजामिया शहरियों से गुजारिश करती है कि ताउन फरमाएं, कचरा नालों और गटरों में ना डालें और किसी भी इमरजेंसी या शिकायत की सूरत में मुतल्लिका टाउन ऑफिस फील्ड स्टाफ से फौरी राब्ता करें। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन हाजी नवाज बरोही ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश के पेश नज़र चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने रेन इमरजेंसी के तहत मंगोपीर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली और हंगामी दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद बारिश के बाद नकासियात की सूरत हाल का अमली तौर पर जायजा लेना और इस बात को यकीनी बनाना था कि किसी भी इलाके में बारिश का पानी खड़ा न हो, शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश न आए और आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहे। जबकि चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने सिर्फ हिदायत देने पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि बारिश के दौरान खुद फील्ड में मौजूद रहते हुए मरकजी शाहराहों, अंदरूनी गलियों, नशीबी इलाकों और हसास मकामात का तफसीली मुआयना किया। जहां जहां बारिश का पानी जमा नजर आया वहां हाजी नवाज अली बरोही खुद पानी में उतर गए और बल्दियाती अमले के शाना बशाना खड़े होकर अपनी निगरानी में फौरी नकासियात को यकीनी बनाया। उनकी इस अमली मौजूदगी ने न सिर्फ अमले के हौसले बुलंद किए बल्कि अवाम में भी इत्मीनान और एतमाद की फिजा कायम की। मौके पर मौजूद शहरियों ने चेयरमैन मंगोपीर टाउन को बारिश के पानी में खड़े होकर काम करवाते देखा तो उन्होंने खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। अवाम का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा चेयरमैन कभी नहीं देखा जो बारिश, पानी और मुश्किलात के बावजूद खुद फील्ड में उतरकर अवामी मसाइल हल कर रहा है। शहरियों ने हाजी नवाज अली बरोही की मेहनत, जुर्रत और अवाम दोस्ती को सराहते हुए उनके हक में दुआएं की और उनका हौसला बुलंद किया। अवाम की जानिब से मिलने वाली पजीराई पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये अवाम की मोहब्बत, दुआओं और एतमाद का ही नतीजा है कि आज मैं इस मकाम पर हूँ। आप लोगों का हौसला और ताउन ही मेरी असल ताकत है और जब तक मैं इस मनसब पर हूँ आपकी खिदमत में किसी किस्म की कोताही नहीं होने दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंगोपीर टाउन के अवाम उनका खानदान है और खानदान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाता। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार और टाउन का मुतालिका फील्ड स्टाफ भी चेयरमैन के हमराह मौजूद रहा, जो मुसलसल मशीनरी, डी वाटरिंग पंप्स और अफरादी कुव्वत के जरिए नकासी आब के कामों में मसरूफ रहा। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने अफसरान और अमले को वाज़ेह और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के दौरान रेन इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी और तमाम अफसरान, इंजीनियर्स और फील्ड स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम देंगे। हाजी नवाज अली बरोही ने मजीद हिदायत की कि जिन इलाकों में माजी में पानी जमा होने की शिकायत रही है वहाँ खुसूसी तवज्जो दी जाए, नकासियाब के तमाम नालों और लाइनों को फाल रखा जाए और बारिश के दौरान मशीनरी, पंप्स और अमला हमा वक्त अलर्ट हालत में मौजूद रहे ताकि पानी जमा होने की सूरत में फौरी तौर पर निकाला जा सके और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने इस मौके पर आवाम से भी अपील की कि शदीद बारिश के दौरान बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें, नशीबी इलाकों और खुले मैन हॉल्स के करीब एहतियात बरतें और किसी भी हंगामी सूरत हाल और नकासियाब के मसले की सूरत में फौरी तौर पर टाउन इंतजामिया को इत्तिला दें। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि मंगोपीर टाउन की इंतजामिया आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद है और बारिश के दौरान दरपेश तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आखिर में चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो जाती तौर पर बारिश के दौरान फील्ड में मौजूद रहेंगे, हालात की खुद निगरानी करेंगे और आवाम के मसाइल को बर वक्त हल करके मंगोपीर टाउन को महफूज, साफ और बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्लाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से कबल बल्दियाती तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने कहा, नालों की सफाई, गलियों और सड़कों पर पानी खड़ा होने से बचाव के लिए फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखा गया है। आपको बताते चलें कि न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने मुतवक्किल मॉनसून बारिशों से कबल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बल्दियाती सहूलियात और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सफाई, नकासियाब और दीगर बल्दियाती इक़दामात का मुआयना किया और मजमूई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरे के मौके पर एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक खान और दीगर मुतालिका अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे, जिन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को जारी इंतजामात और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया।
म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने इस मौके पर कहा कि बारिशों के दौरान आवाम को किसी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। शावल, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और जमाशुदा पानी की फौरी निकासी के लिए जनरेटर्स, पंप भी तैयार रखे हुए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि नालों की सफाई, गलियों और सड़कों पर पानी खड़ा होने से बचाव के लिए फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखा गया और किसी भी शिकायत पर फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर खुद बारिश के दौरान सड़कों पर मौजूद रहे और मुख्तलिफ इलाकों में नकासियात के अमल की निगरानी करते रहे, जिसके बायस सूरत हाल काबू में रही और शहरियों को किसी बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करने के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह दफ्तर रवाना हो गए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मेयर कराची लियारी में एक खानदान के लापता 3 अफराद के घर पहुंच चुके हैं, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तीनों लापता अफराद के अहले खाना से ताज़ियत भी सामने आई। मेयर कराची की लापता अफराद के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की यकीन दहानी, जबकि लापता हस्साम, समद और हमजा गुल प्लाजा में मुलाजमत करते थे। सानही के बाद से अब तक तीनों लड़कों का कुछ पता न चल सका। जबकि दूसरी जानिब आपको खबर देते चलें कि कराची मलबे से मजीद 5 अफराद की बाक़ियात मिल चुकी हैं। DC साउथ जावेद नबी का बयान सामने आ गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जहाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो चुकी है, जबकि इमारत मुकम्मल मखदूश हो चुकी है। तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि DC साउथ की जानिब से ये भी कहा गया कि वाक़ई की तहकीकात जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लेंगे। खबर शामिल करें कि गुल प्लाजा पर सर्च ऑपरेशन के दौरान वक्फे से आग भड़कने लगी। जाए हादसा पर मलबा हटाने का 50% अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बेसमेंट एरिया से धुआं निकालने के लिए बड़े पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ की आप? बिल्कुल, रात के इस पहर भी गुल प्लाजा के मकाम पर जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और अब भी वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़कने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस वक्त भी आप मेरे पसे मंजर में देख सकते हैं, ये गुल प्लाजा का जो है वो पिछला हिस्सा है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी था और इसी दौरान एक मरतबा फिर बेसमेंट एरिया में जो है वो आग जो है वो भड़क उठी और इस पर काबू पाने के लिए दोबारा फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो बेसमेंट एरिया में रेस्क्यू रज़ाकार हैं वो दाखिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि अंदर धुआं भरा हुआ है और तपिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंदर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को और फायर ब्रिगेड की टीमों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो अब KMC के जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जानिब से ये इक़दाम किया गया है कि बेसमेंट एरिया में जो पंखे हैं वो बड़े पंखे लगा दिए गए हैं। उन पंखों की मदद से अंदर जो मौजूद धुआं है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और काम का ये कहना है कि धुआं बाहर निकलने के बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो बेसमेंट एरिया में दाखिल होंगी और वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जो है वो शुरू किया जाएगा। आपसे कुछ देर पहले जो डिप्टी कमिश्नर जनूबी है उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो 80% तक मुकम्मल कर लिया गया और 20% जो रह गया है वो बेसमेंट एरिया में रह गया और अब से कुछ देर बाद उसे भी जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अब तक मलबा उठाने की अगर बात की जाए तो 150 से ज़ायद ट्रकों में जो है वो मलबा लोड करके किमाड़ी के इलाके में जो डंपिंग पॉइंट है उसे वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि 50% मलबा उठाने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ अब तक अगर अमवात की बात की जाए तो सानिया गुल प्लाजा में जो अमवात की तादाद है
वो 67 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। डीसी साउथ का ये कहना है कि 67 अफराद की लाशें जो है वो गुल प्लाजा के मकाम से जो है वो निकाल ली गई हैं। अगर शनाख्त के हवाले से बात की जाए तो अब तक 18 अफराद की लाशों की शनाख्त जो है वो कर ली गई है, जिनमें एक खातून और एक बच्चा भी जो है वो शामिल हैं। जबकि जो मिसिंग पर्सनस की तादाद है वो इस वक्त 77 पर जो है वो मौजूद है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद जो है वो 88 तक जा पहुंची थी और 3 अफराद के नाम जो है इसमें डबलिंग पर थे, जिन्हें जो है वो हटाया गया और उसके बाद जो मज़ीद लाशें इस मकाम से निकाली गई थी, तो शनाख्त मुकम्मल होने के बाद अब ये जो फिगर है वो 77 पर जाकर जो है वो ठहर गया है। रात के इस पहर भी जो सर्च ऑपरेशन है वो तवातुर के साथ जो है वो जारी है और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो गुल प्लाजा की इमारत है इसे जो है मुनहदिम कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब सानिहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले उस्मान को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सूबाई वजीर और टाउन चेयरमैन मोरो मीर बहर जनाजे में शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा में शहीद होने वाले उस्मान को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा में सूबाई वजीर मेहनत सईद ख़नी, रुकन सूबाई असम्बली अली अहमद जान और टाउन चेयरमैन अली अकबर ने शिरकत की और इनके अहल खाना से ताज़ियत की। सईद ख़नी ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। रुकन सूबाई असम्बली अली अकबर ने कहा, इस वक्त पूरा शहर सोगवार बना हुआ है। हमारी पूरी क़यादत इस वक्त दुख में है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। टाउन चेयरमैन मोरमीर बहर अली अकबर का कहना था कि पूरा इलाका अपना है और यहाँ रहने वाला हर शख्स मेरे दिल के बहुत करीब है। लवाहिकीन से मुकम्मल राब्ते में हैं। आइंदा भी इन्हें जो ज़रूरत पड़ी हम हाजिर होंगे। सानिहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले शहरोज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली अली अहमद जान और टाउन चेयरमैन अली अकबर भी शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले शहरोज़ की नमाज जनाजा सिसकियों में निहायत रंज अलम के आलम में अदा की गई। फिजा में सन्नाटा था, आंखें अश्कबार थीं और दिल गम से निढाल नजर आ रहे थे। नमाज जनाजा में MPA अली अहमद जान, टाउन चेयरमैन मोर्रो मीर बहर अली अकबर, मंगोपीर टाउन चेयरमैन नवाज बरोही के साथ साथ अहले इलाका और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर शख्स के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था और हर जबान पर मरहूम के लिए दुआएं थीं। टाउन चेयरमैन अली अकबर ने कहा, शहरोज़ की अचानक जुदाई ने पूरे इलाके को सोग में मुब्तला कर दिया है। माँ बाप का कर्ब और लवाहिकीन का दुख देखकर दिल टूट जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद शहरोज़ को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसके दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा सहने की हिम्मत और सब्र अता करे। आमीन। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया का कहना है, इंसानियत की खिदमत की असल सियासत है। उन्होंने निजी NGO को अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए रकम भी अतिया कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन के चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही असल सियासत है। कोशिश है कि गरीब और मुस्तहिक लोगों की तकालीफ जितना मुमकिन हो कम कर सकूं। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान की हमरा बेगम शाइस्ता मतीन वेलफेयर डिस्पेंसरी सेक्टर 14 UC नंबर 2 औरंगी की इंतजामिया को अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद जियाउद्दीन मरहूम और वालिदा इरफाना बेगम की ईसाल सवाब के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीदारी के लिए नकद रकम अतिया करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरंगी टाउन एक पसमानदा और गरीब आवाम की आबादी है, जहाँ ये बेगम शाइस्ता मतीन डिस्पेंसरी है। मैंने कुछ दिन पहले डिस्पेंसरी का विजिट किया था। डिस्पेंसरी के सरपरस्त ने मुझे बताया था कि डिस्पेंसरी में गुलशन बिहार, गुलशन जिया, सेक्टर 14C, जौहर चौक और दीगर इतराफ के इलाकों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। उनमें से अक्सर मरीजों को अल्ट्रासाउंड टेस्ट की जरूरत पेश आती है। अल्ट्रासाउंड 2,500 से 3,000 रुपए में होता है। अक्सर गरीब मरीज ये महंगा टेस्ट नहीं करवा पाते। उन्होंने दरखास्त की कि डिस्पेंसरी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की अशद जरूरत है, आप हमें अल्ट्रासाउंड मशीन दिलवा दें तो हम ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट 500 में करेंगे। जिस पर मैंने उनसे कहा कि मैं औरंगी का बेटा हूँ और यहाँ की माएं बहनें और बुजुर्ग मेरे अपने हैं। मैंने उनसे कहा था कि अल्ट्रासाउंड मशीन अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए दूंगा और आज मैंने ये वादा पूरा कर दिया है। बेगम शाइस्ता मतीन डिस्पेंसरी में जौहर चौक पे, जो कि यहाँ पर जो हमारे औरंगी के जो है काफ़ी बड़ी जो आबादी है हमारी यहाँ के पसमानदा इलाका है और गरीबों की आबादी है। और यहाँ पर ये बेगम शाइस्ता मतीन डिस्पेंसरी में जो है 100 रुपये की पर्ची में
6 वक्त के जो है डॉक्टर जो है देखते हैं मुफ्त, और उनको दवाई भी मुफ्त मिलती है यहाँ से। मैं पिछले दिनों आया था और आने के बाद जो है मुझे दानिश भाई ने जो है, जो कि यहाँ के हेड है, ऑनर है, उन्होंने जो है बताया कि यहाँ पे जो हमारे औरंगी से जो है गुलशन ज़िया हो जाए, गुलशन बिहार हो जाए, 14सी हो जाए, जौहर चौक हो जाए, औरंगी के मुख्तलिफ एरिया से जो गरीब लोग आते हैं और उनका जो है हम मुफ्त इलाज करते हैं। तो मैंने उस पर कहा कि ठीक है, मैं जो है अपने यहाँ के गरीब जो मेरे औरंगी के अवाम है, मैं उनके लिए जो है अपना, इन्होंने बताया था कि अल्ट्रासाउंड की जो है मशीन जो है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो है लोगों को जो है अल्ट्रासाउंड जो है जो कि 2500-3000 पे होता है, मैं 500 रुपये में जो है गरीब लोगों का यहाँ जो है रोज़ के बुनियाद पे जो है अल्ट्रासाउंड होगा, और 500 रुपये जो यहाँ के पसमानदा और गरीब लोग जो बर्दाश्त कर सकते हैं उस पर जो है मैं शुरू करना चाहता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं माहाना इंस्टॉलमेंट में जो है पेमेंट करके ये अल्ट्रासाउंड मशीन उठाऊँ। तो मैंने इन्हें कहा कि नहीं, मैं आपको अपने औरंगी के गरीब आवाम के लिए, क्योंकि मेरी माएँ बहन हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरा पूरा औरंगी मेरा है, मैं उनके लिए मैंने कहा मैं ये देने को तैयार हूँ। मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम और मेरी वालदा मोहतरमा इरफाना मरहूमा के नाम से मैं ये डोनेट करना चाहता हूँ, ये जो है मशीन, अपना अल्ट्रासाउंड मशीन। तो आज मैं आके इनको जो है ये पेमेंट जो है मैंने अल्ट्रासाउंड का जो है पेमेंट इनको दिया है। इंशाअल्लाह ताला दानी साहब ने जो है बताया है कि 1 फरवरी से जो है हमारे औरंगी के आवाम के लिए यहाँ पर जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है शुरू हो जाएगा। जो भी जो है गरीब हजरात जो है अल्ट्रासाउंड जो कराने बाहर शहरों में जाते हैं, जो 3000-4000 लेते हैं, उनका यहाँ सिर्फ 500 रुपये में होगा। वो भी ये 500 रुपये, हमने पूछा कि क्यों लेंगे आप, हमारे जब गरीब लोग हैं वो 500 भी नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने बताया दानी साहब ने कि वो 500 रुपये इसलिए रखा है कि जो डॉक्टर होंगे, सोनोग्राफर, वो जो है तकरीबन जो है लाख रुपया 1.5 लाख रुपया उनका जो है सैलरी होता है। डिस्पेंसरी के सरपरस्त आला ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया का अपने महरूम वालिदैन के इसाल सवाब के लिए इलाके के गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन अतिया करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने औरंगी टाउन के दौरे के दौरान बज़्म वादी रजा के इंतजामिया की दरखास्त पर मरकजी सेक्रेटरीट सेक्टर 14 औरंगी टाउन का दौरा किया। इंतजामिया ने अपनी चंद मसाइल की निशानदही करवाई और इनको हल करवाने की दरखास्त की। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने बज़्म वादी रजा के ओहदेदारान को उनके मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। हाजी जमील जिया की हिदायत पर खलील मार्केट सेक्टर 11.5 UC 6 औरंगी टाउन में सानिया गुल प्लाजा के शोधा की इसाल सवाब के हवाले से इज्तिमाई दुआया महफिल का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई दुआया महफिल में टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने सानिया गुल प्लाजा के मरहुमीन की इसाल सवाब और इनके लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करते हुए सब्र की दुआ की। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया की गुज़िश्ता शब औरंगी टाउन के तफसीली दौरे के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी आगा फहद अहमद खान, UC 3 के चेयरमैन मकबूल खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान PS 95 की जनरल सेक्रेटरी तारिक खान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती अफसरान और इलाकाई अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने 3000 रोड को खूबसूरती से सजाने की ठान ली। वो पीपल्स पार्टी के जिले सदर जानी मेमन के हमराह दौरा कर रहे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का 3000 रोड को मॉडल रोड बनाने का अज़म। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने इलाके की खूबसूरती और माहौलियाती बेहतरी के लिए 3000 रोड ग्रीन बेल्ट की तामीर नौ का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी के सदर जानी मेमन और PS 95 के सदर सलीम अफान, टाउन काउंसलर इम्तियाज़ चीमा, राजा बाबर और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी की सड़कों के साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स को भी मिसाली बनाया जाएगा ताकि शहरियों को खुशगवार माहौल मैसर आ सके। आज हम TMC कोरंगी 3000 रोड पे हम खड़े हैं और इस रोड पे हम ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। इस रोड को खूबसूरत करने जा रहे हैं। जहाँ रिपेयर मेंटेनेंस का काम है उसको रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, जा रहे हैं करने। मेरे साथ मेरे ज़िले के सदर हैं जानी भाई, मेरे सिटी एरिया के सदर हैं सलीम अमान साहब। हम तीनों ने 2 दिन पहले जानी भाई ने मुझे और सलीम अमान को और हमारे UCs के यहाँ के चेयरमैन को बुलाया और कहा कि अब अपने कोरंगी के अंदर हमने जो मेन शारा है जहाँ हमारे TMC कोरंगी की जो शारा है हमने उसको ब्यूटिफिकेशन करना है और रिपेयर मेंटेनेंस करना है। तो आज हम जानी भाई के साथ आए हैं। इस 3000 रोड के अंदर TMC के अफसरान मौजूद हैं, तमाम डिपार्टमेंट से जो मुंसलिक है इस काम से वो सब डायरेक्टर मौजूद हैं और आज हम इंशाअल्लाह इस TMC कोरंगी की 3000 रोड को रिहैबिट और मेंटेनेंस और ब्यूटिफिकेशन पे लेके जा रहे हैं। मैं जानी भाई से भी बात
कहूँगा कि वो भी बात करें, मेरे बाद सलीम भाई से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जिला सदर जानी मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मंशूर अवामी खिदमत है। टाउन के ज़ेर एहतमाम बेहतरीन काम हो रहे हैं। इस मौके पर टाउन चेयरमैन और अफसरान समेत जिला सदर के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन और सदर PS 86 मलिर नज़ीर अहमद भुट्टो ने UC अली अकबर शाह और UC इब्राहिम हैदरी की आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुकम्मल होने वाली तरक्याती स्कीमों, पीने के साफ पानी, सिवरेज, पेवर ब्लॉक्स और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि UC अली अकबर और UC इब्राहिम हैदरी की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है। इलेक्शन के वक्त आवाम से जो वादे किए थे उन्हें बल्दियाती सहूलियात की सूरत में पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर आवाम को बिला तफरीक बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आवाम को पीने के साफ पानी, तालीम, सेहत, सीवरेज, नाले, रोड और पेवर ब्लॉक समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर देकर हमने अपना फर्ज अदा किया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने अवाम के मसाइल हल किए हैं। बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली काम पर यकीन रखती है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो का सफीर हूँ। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए अवाम को बिला तफरीक बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मैं आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन था, मिशन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये समझता हूँ कि जो मिशन दिया हुआ है उस पर पीपल्स पार्टी और मेरे तमाम यहाँ के नुमाइंदगान, मेरे UC के चेयरमैन, UC के वाइस चेयरमैन और मेरा टाउन डिपार्टमेंट, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अफसरान और मेरे मेंबरान और यहाँ के MNAs, MPs, वो जो वादे किए थे हम सुरखरू हैं आवाम के सामने। हम आज अभी इब्राहिम हैदरी UC 8 में एक सेवरेज की लाइन थी जो बहुत दरीना मसला था, उसका इफ्तिताह किया और वो स्टार्ट है, उसका काम मतलब स्टार्ट हो गई है। उसी जगह पे एक पानी का था और आज यहाँ अली अकबर शाह में एक पंपिंग स्टेशन की बहुत बड़ी एक डिमांड थी, बड़ी लाइन की, वो आज बोस्टन का हमने वहाँ स्टार्ट लिया है, आज वो स्टार्ट हुआ है काम। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टो, इंजीनियर सुहेल मल्ला, टाउन मेंबरान मक्खी और धामिल अजीम, फिरोजानी पार्टी रहनुमा, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। लियारी के म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने लियारी टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन को लाइफ इनकैशमेंट की रकम तकसीम कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान ने पीपल्स लेबर ब्यूरो जुनूबी के सदर जाहिद बलोच, मीर अकरम बलोच और दीगर ओहदेदारान और म्यूनसिपल अफसरान के हमरा लियारी टाउन के मुख्तलिफ शोबा जात से रिटायर होने वाले मुलाजमीन में लिव इनकैशमेंट के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजमूई तौर पर 30 रिटायर्ड मुलाजमीन में 81,37,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब में मुताल्लिका अफसरान और पीपल्स लेबर ब्यूरो के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बाद अज़ां म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने लेबर काउंसलर मुल्ला नईम बलोच और दीगर अफसरान के हमरा चाकीवाड़ा 36 पंप स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी कामों का जायजा लिया और मुताल्लिका अमले को जरूरी हिदायत भी जारी की। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने कहा, हम अवामी सहूलियात फराहम करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, अवामी मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया की हिदायत पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें औरंगी टाउन की ताजी बिरादरी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया की हिदायत पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में औरंगी टाउन की तमाम मार्केटों और कारोबारी मराकज से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों ने शिरकत की। इजलास का मकसद ताजिरों को फायर सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम करना और मुस्तकबिल में किए जाने वाले बल्दियाती और तरक्याती इक़दामात पर एतमाद में लेना था। म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहाद अहमद खान दुरानी और टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फायर सेफ्टी इक़दामात पर किसी सूरत गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, यहाँ जो है हमारे औरंगी टाउन पे मेट्रो सिनेमा के पास जो फायर स्टेशन है उसमें जो है हमें तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही नज़र आती हैं आते जाते हुए, और उसका जो है अपडेट जो है वो हमने अपने MC को कहा है वो जो है लेने के लिए कि उस पर कारामत है या नहीं है, ये जो है मालूमात करो। और आपने अभी हमारे जो MC साहब से जो अभी आपने सवाल किया
کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس ٹائم جو ہے آپ تاجر برادری یا دوسرے جو ہے محکمے جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سانحہ جو وہ بچے کا گٹر والا جو ہوا ہے، آپ نے کہا کہ وہ اس کے بعد ٹون جو ہے وہ کیا نہیں. یہ دیکھیں یہ جو گٹر کے جو ڈھکن تھے وہ جو ہے واٹر اینڈ سیوریج کے بورڈ کا وہ جو ہے کام ہے وہ گٹر کے ڈھکن بند کرنے کا. لیکن میں اس پر بھی جو ہے تقریباً اپنے اورنگی ٹاؤن میں جو ہے 1500 جو ہے ڈھکن اور رنگ جو ہے ہم نے جو ہے ڈالا ہے ایز اے انسانی ہمدردی پہ، کیونکہ بچے ہمارے بھی ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے اورنگی کے جو ہے کوئی معصوم بچے جو ہے اس حادثے کا شکار ہوں. سب سے بڑی بات جو ہے میں آج جو ہمارے اورنگی ٹریڈز کے تمام ذمہ دار جو یہاں پر اور اورنگی کے 16 مارکیٹوں کے صدر، جنرل سیکریٹری، پوری کمیٹی یہاں پر موجود ہوئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ہو کہ کوئی حادثہ ہو ہمارے اورنگی ٹاؤن میں. میں میئر صاحب سے KMC سے پرزور اپیل کروں گا اپنے تمام جو اورنگی ٹریڈز کے ذمہ داروں کے ساتھ کہ اورنگی میں نالا جو ہے بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کھلے میں. وہ نالا جو کہ 4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ 8 فٹ کے ہیں نالے وہ جو ہیں وہ بیٹھ جا رہے ہیں، وہ کھلے میں ہیں. اس میں کبھی کوئی موٹر سائیکل گر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے جو ہے بزرگ ہمارے کوئی نوجوان اس میں گر رہے ہیں. وہ جو ہے اپنا ایک کمیٹی بنا کے KMC کی طرف سے جو ہے میئر صاحب جو ہے بھیجے اور اورنگی کے جو نالا جو کھلے میں ہیں اس کو فوری طور پہ جو ہے بند کرے. کل کو کوئی نہ کوئی حادثے سے جو ہے ہمارے جو اورنگی کے جو بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے بچے، ہمارے یوتھ جو ہے اس حادثے سے بچ سکے. میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد نے کہا آگ سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کر کے ہی بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. آج ہم نے اجلاس کیا ہے یہ جو ہمارے گل پلازا میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے فوری طور کے بعد جو ہمارے اپنا CM صاحب ہیں آنریبل منسٹرز ہیں ہمارے اور کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر ویسٹ، پھر ہم نے ایک اجلاس کیا میں نے اور میرے چیئرمین نے. اجلاس میں ہم نے یہی سوچا کہ ہم کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. پھر آج ہم نے یہی ان کو 9 پوائنٹس دیے ہیں کہ آپ ان کو سیدھا کرتے ہیں. ان کی بھی کچھ شکایتیں تھیں اینٹی انکروچمنٹ کی، اس کی اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں اگلے ہفتے سے منڈے سے میں شروع کر رہا ہوں ہر علاقے میں ان کے جتنے بھی یونین والے ہیں ان کے پاس جا کے جو بھی ان کے مسئلے ہوں گے وہ میں حل کر کے دوں گا. اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ اپنے دکانوں کے اندر فائر کے جتنے بھی، جیسے ہم نے بولا تارے ننگی نہ ہوں، تاروں کو آپ بالکل صحیح کریں. اس کے اندر جو ہم نے 9 پوائنٹس میں لکھے ہیں ان کو یہ کرنا ہے. انہوں نے سب نے ایگری کہ ہم کرنے کو تیار ہیں. منڈے سے ہم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے علاقوں میں جانا. موبائل مارکیٹ ہو گیا، ان کی جو اپنا یہ ٹریڈ ہے یونین جو بنی ہوئی ہے اورنگی ٹریڈ، اس کے اندر بھی میں جاؤں گا. انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اس موقع پر تاجر برادری نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. یہ اجلاس بالکل ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمام مارکیٹیں ہیں، تقریباً 8 اس ٹاؤن میں مارکیٹیں آتی ہیں. SOP سب جگہ ہونا چاہیے کہ آئندہ جو حادثہ گل پلازا ہوا ہے وہ کہیں اور نہ ہو سکے. سانحہ گل پلازا کے بعد آج یہ اورنگی ٹریڈ کا ایک اجلاس ہوا ہے ٹاؤن چیئرمین جمیل ضیاء صاحب کی سربراہی میں. تمام اورنگی ٹاؤن کی جو 16 بڑی مارکیٹس ہیں ان کے صدر، جنرل سیکریٹری اور چیئرمین نے شرکت کی ہے. SOP کے حوالے سے جو چیزیں یہاں ٹاؤن نے بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی تمام مارکیٹ کے ذمہ داران اور دکاندار اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. تمام تاجر برادری کو بلا کے گل پلازا کے جو متاثرین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور تمام مارکیٹوں کے لیے SOPs بنائی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا حادثہ پیش نہ آ سکے. اس کے اوپر میں شکر گزار ہوں ٹاؤن چیئرمین جمیل ضیاء صاحب کا، آغا فہد صاحب کا اور ہمارے ٹریڈ کی تمام تاجر برادری کا جنہوں نے بھرپور اس میں تجاویز پیش کری. میں اپنے MC آغا فہد صاحب کا، اورنگی ٹریڈ ایسوسیشن کے چیئرمین رضی حیدر رضوی بھائی اور اپنے ہمارے ٹاؤن چیئرمین جمیل ضیاء بھائی کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہیں تاجروں کے درد کو سمجھا اور ایک میٹنگ ارینج کری اور جو SOPs تھی وہ جاری کری. اور انشاءاللہ جو SOPs ہمارے MC صاحب نے اور ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ہمارے اورنگی ٹریڈ ایسوسیشن کے چیئرمین رضی بھائی نے جو SOPs جاری کری ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ مارکیٹ کے اندر اس SOPs کو فالو کروا سکیں اور اپنے دکانداروں کی جان اور مال کے تحفظ کی
जो जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। मार्केटों, प्लाजों और दुकानों की हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इजलास के दौरान मुस्तकबिल में होने वाले तरक्याती कामों, सफाई, नकासियाब और दीगर बल्दियाती सहूलियात से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि ताजिरों के मसाइल और तजावीज़ भी सुनी गई। इजलास के अख्ताम पर इंतजामिया और ताजिर बरादरी के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बढ़ाने और शहर को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन मंसूर नसीम के साथ आमिर अवान, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करें कि महकमे ज़राअत तजावुज़ात के गुलशन इकबाल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैं इंसदाद तजावजात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से यूनिवर्सिटी रोड, महकमा मौसमियात, बस स्टॉप तक सफारी पार्क, रेड लाइन बस मंसूबे एतराफ और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में गुलशन इकबाल डिवीजन और गुलिस्तान जौहर डिवीजन की मुश्तरका कार्रवाई, कॉरिडोर के एतराफ तजावजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए ठेले, काउंटर, टेबल, कुर्सियां, पंचर का सामान और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राणा ने स्टाफ को हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर इन इलाकों का चक्कर लगाया जाए, किसी भी शख्स को तजावजात लगाने न दी जाए। उन्होंने कहा शहर भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। मेयर कराची का वाज़ेह हुक्म है कि सड़कों को तजावजात से क्लियर रखा जाए। और यहाँ पे आपको अहम खबर देते चलें कि गुल प्लाजा के सर्वे और इन्हेदाम के लिए SBCA की जानिब से खुसूसी टीम मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल SBCA के हुक्म पर अफसरान और एहलकारों को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ एहसान यूनुस से। जी एहसान यूनुस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल सानिया, गुल प्लाजा के हवाले से आज दोपहर में हमने जो खबर नशर की थी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो डेंजरस इमारतों का मुआयना करने वाली टीम है वो गुल प्लाजा के मकाम पर पहुंची थी और उसके बाद उन अफसरान की जानिब से इस तमाम तर हमले और सूरत हाल का जायजा लिया गया है, जिसके बाद अब ये किया है कि गुल प्लाजा के सर्वे और इंतजाम के लिए SBCA की जानिब से ये खसूसी टीम जो है मुकर्रर की गई है। डायरेक्टर जनरल SBCA के हुक्म पर अफसरान और एहलकारों को खसूसी जिम्मेदारियां ये जो है वो सौंपी गई हैं और ये जो कायम करदा कमेटी है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन रियाज खुश्क और शहरियार मकसूद को जो है वो नाम, सीनियर बिल्डर अब्दुल अलीम शेख इस कमेटी के जो है वो मेंबर डायरेक्टर हैं, हुमायूं खान, मुजीबुद्दीन और अनीस और रहमान में शामिल किया गया है। ये अफसरान गुल प्लाजा से मुतल्लिक सर्वे और मुमकिन इंतजामी कार्रवाई पर आपस में जो है वो मुशावरत करेंगे। साउथ को जो है वो ये हिदायत की गई है कि मुशावरत के बाद जो भी इंतजामी कार्रवाई है उसे जो है वो अमल में लाया जाएगा। अब तक जो मलबा उठाने का सिलसिला है 50% तक ये मलबा उठाने का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। बेसमेंट एरिया को जो है वो सर्च नहीं किया गया था, उसके लिए कल सुबह से जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा और बेसमेंट एरिया को सर्च करने के बाद SBCA और जो KMC की टीमें हैं वो इंतजामी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।